Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. These are the very true lines of Nelson Mandela. Hello guys, I am Devansh, your geography trainer over here. I welcome you all to our channel Graduate Yourself. It's a unique platform where we bring the things you desired. I hope you all are doing fantastic and great job during this COVID-19 crisis. I know, guys, the time is tough for all of you, but we need to prove the time we are even more tougher. So, guys, today I am back with one more important and interesting topic of population geography, that is migration. In my last two videos, I've addressed the maximum portion of population geography, and you can check out the links in description. After covering migration, there is not anything more important and extra left in population geography from graduation point of view, as in my last two lectures I have covered the basics of population geography, population structure, population composition in India, and factors influencing the distribution of population in the world and India, etc. stuffs. And today we are going to cover the topic migration. So guys, without wasting any more time, let's get started. Now, I need to mention the sources here. As far as the sources are concerned, it has been incorporated from the Geography of Population by R.C. Chandana and Human Geography by Majid Hussain. Okay, so guys, I would like to make one announcement over here, that is, from now onwards, the mode of communication in my lectures will be bilingual, that is both in Hindi and English. इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मेरे पास रिक्वेस्ट आई फीडबैक के फॉर्म में कि इंग्लिश का यूज़ बहुत ज़्यादा हो जा रहा है लेक्चर्स में, जिसके कारण जो हिंदी मीडियम की मेजॉरिटी है उनको समझने में दिक्कत हो रही है। तो आफ्टर ऑल हमें उनकी रिस्पेक्ट भी करनी है, तो उनको देखते हुए मैं एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करूँगा अपने लेक्चर्स में, और कोशिश करूँगा कि आप तक अच्छे से उसको डिलीवर कर पाऊँ. तो from now onwards the lecture will be bilingual. Okay guys, now as you know guys, this topic migration has been very much in vogue during the lockdown in country, and we all witnessed the exodus of laborers from various cities to their hometown. Exodus means the movement or migration of the people on very large scale from one place to another. Okay, so we'll be discussing these stuffs and issues over here. So now let's get started, and before starting let me tell you what exactly the migration is. Okay guys, so what is migration? Migration किसे कहते हैं? Human migration is the movement of people from one place to another with the intentions of settling permanently or temporarily at a new location. इसका मतलब ये हुआ कि human migration जो है, यानी जिसे हम पलायन या स्थानांतरण भी कह सकते हैं, दिस इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक जगह से दूसरी जगह पे इंसानों के द्वारा किया गया पलायन या स्थानांतरण ही माइग्रेशन कहलाता है. वो किसी पर्पस से हो सकता है, वो इंटेंशनल हो सकता है, और इट कैन बी परमानेंट एज वेल एज टेम्परेरी इन नेचर. इसका मतलब या तो वो माइग्रेट करके वहाँ पे टेम्परेरी माइग्रेट करे हैं, और या परमानेंटली वहाँ माइग्रेट कर गए हैं और वो वहाँ से छोड़ के कहीं और नहीं जाएंगे. Okay, the movement is often over long distances and from one country to another, but internal migration is also possible. Indeed, this is the dominant form globally. People may migrate as individuals, in family units, or in large groups. Yes, जो बहुत ही ज़्यादा विजिबल या बहुत ही ज़्यादा ऑफन, बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंट माइग्रेशन रहा है, वो रहा है लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन, यानी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन नहीं होते हैं. इंटरनल माइग्रेशन होते हैं, और ग्लोबली ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हैं.
एंड पीपल माइग्रेट एज इंडिविजुअल्स इन फैमिली यूनिट्स और लार्ज ग्रुप्स। कई तरह से माइग्रेट करते हैं पीपल। दे माइग्रेट एज एन इंडिविजुअल, वो अकेले भी माइग्रेट कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो माइग्रेट विद देयर फैमिली, परिवार के साथ भी माइग्रेट करते हैं, और एक समूह में यानी एक लार्ज ग्रुप में भी वो माइग्रेट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन एंड सिचुएशंस ओवर देयर। ओके, नाउ माइग्रेशन इज ऑलमोस्ट एज characteristic of Homo sapiens as a tool making and culture binding. बिल्कुल, in fact we can say that migration and humans are both inseparable, because migration has been in the very hereditary nature of the humans. Human existence and survival would not have been possible without the migration. ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। रीज़न ये है कि सिचुएशंस और कंडीशंस जहाँ बहुत ज़्यादा टफ होती थी, वहाँ पास इंसान मजबूर होता था वहाँ से पलायन करने के लिए, वहाँ से स्थानांतरण करने के लिए। तो दैट्स वाई दिस इज़ द वेरी कैरेक्टरिस्टिक नेचर ऑफ द ह्यूमंस. Man is the most widely distributed social animal on the earth's surface. From their probable origin in Africa, human groups had spread out to occupy all the major land areas of the earth, excepting Antarctica, about 20,000 years before present, long before the beginning of the agriculture and written history. Thus, migration is a geographical phenomenon that seems to be of a human necessity in every age. Since man has a tendency to leave the areas in which life is difficult, he migrates to the areas where life may be easy and better. Yes, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मैन इज़ द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, वी आर फाउंड ऑल ओवर दी वर्ल्ड। हम हर कॉन्टिनेंट पे और इवन एक्सट्रीम लोकेशन पे भी पाए जाते हैं। रीज़न ये है क्योंकि हमने माइग्रेशन किया है और बहुत ही लार्ज स्केल में माइग्रेशन हुआ है। जैसा कि कहा जाता है कि जो एवोल्यूशन हुआ था ह्यूमंस का, वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से ही हुआ है। द फर्स्ट होमो सेपियंस अपीयर्ड ओवर देयर, एंड वो वहाँ से बाहर निकल के बाकी कॉन्टिनेंट्स और बाकी लैंड में उन्होंने माइग्रेशन किया, वो से माइग्रेट हुए और बाकी जगह पे स्प्रेड हुए। सॉरी, एंड एक्सेप्ट दी अंटार्कटिका। बिल्कुल सही बात है, अंटार्कटिका में, क्योंकि वहाँ पास क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है और साउथ पोल के पास है, क्योंकि तो वहाँ पास जाना पॉसिबल नहीं था उस समय। एंड ये तब की बात है जब ऑलमोस्ट 20,000 ईयर्स बिफोर की बात मैं कर रहा हूँ, जब इवन रिटन हिस्ट्री क्या एग्रीकल्चर भी स्टार्ट नहीं हुआ था, या ना कृषि का जन्म हुआ था, ना कोई रिटन हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स वगैरह थे। तो इससे ये पता चलता है कि द माइग्रेशन इज़ एन एज ओल्ड प्रोसेस। दस माइग्रेशन इज़ अ ज्योग्राफिकल फिनोमिनन दैट सीम्स टू बी अ ह्यूमन नेसेसिटी इन एवरी एज। इसका मतलब सीधी सी बात ये साबित होती है कि ये ह्यूमन के लिए बहुत ही नेसेसरी है और ह्यूमन के नेचर में भी रहा है। नाउ आई होप मैंने आपको एग्जैक्टली एक आइडिया दे दिया है कि क्या है माइग्रेशन, और मैं होप करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। एंड नाउ वी विल जंप टू द कॉजेज़ ऑफ माइग्रेशन। किन किन कारणों से माइग्रेशन होता है, कौन से ऐसे कारण हैं जो पलायन को ट्रिगर करते हैं। लेट्स सी। सो गाइस, अब कॉजेज़ ऑफ माइग्रेशन पे बात करते हैं। बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं माइग्रेशन के, तो कौन कौन से कॉजेज़ होते हैं ये देखते हैं। द कॉजेज़ ऑफ माइग्रेशन मे बी न्यूमरस एंड दीज मे रेंज फ्रॉम नेचुरल कैलामिटीज़, मतलब नेचुरल डिज़ास्टर, क्लाइमेटिक चेंज, जलवायु परिवर्तन, एपिडेमिक्स, महामारी, ड्रॉट, सूखा, टू सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। या जैसा कि आपने जाना कि इन तमाम कारणों की वजह से पलायन या स्थानांतरण हो सकता है। एंड द ओवर पॉपुलेशन एंड हैवी pressure on the resources may be the cause of permanent or temporary and long distance or short distance migration. Many a time, the differences between the groups and levels of technology and economic opportunities also caused large scale migration. जी हाँ, ओवर पॉपुलेशन की वजह से, वहाँ के लोकल रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा हैवी प्रेशर होने की वजह से, या वो एग्जॉस्ट कर गए हों, इन तमाम कारणों की वजह से परमानेंट या टेम्परेरी, लॉन्ग डिस्टेंस या शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन हो सकते हैं। एंड बहुत बार क्या होता है, मैनी अ टाइम देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप्स इन लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी। उनकी एडवांसमेंट में, उनके डेवलपमेंट में डिफरेंस होता है दो ग्रुप्स के या दो एरियाज़ के, और उनकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उनके कारण भी लार्ज स्केल माइग्रेशन लोगों का होता है। कैसे होता है, आइए हम देखते हैं। Now we will be discussing few major factors which are the causes of migration. Okay,
The first is technology. So let's see how technology has the potential to cause the migration. Okay. People with more sophisticated technology may invade and conquer new areas. Contrary to this, the less advanced groups may be attracted to the greater opportunities provided by a more developed society. बिल्कुल सही बात है. पीपल हु आर टेक्नोलॉजिकली वेरी एडवांस, जो कि टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे हैं और एक विकसित समाज में रहते हैं, डेवलप में डेवलप सोसाइटी, वो दूसरी जगह पे इन्वेट कर सकते हैं, कॉन्कर कर सकते हैं. रीज़न ये है क्योंकि वो वहाँ से इकोनॉमिक बेनिफिट लेना चाहते हैं, वहाँ पास अपना एम्पायर क्रिएट करना चाहते हैं. ये तमाम कारणों से क्या होता है, वो माइग्रेट करते हैं. जैसे कि ब्रिटिशर्स आए थे हमारे यहाँ. नाउ कॉन्ट्रेरी टू दिस, द लेस एडवांस ग्रुप मे बी अट्रैक्टेड टू द ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़. ऐसी जगह जहाँ पास संभावनाएं अपार हों या बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो, जो Okay, कम guys, विकसित समाज है, now वो let उसकी me तरफ give you माइग्रेट example करेगा over here. ताकि उसकी After सारी the आवश्यकताएं पूरी हो Industrial सके. Revolution in 1779, हुआ क्या था उसके बाद कि द यूरोपियंस इमाइग्रेटेड टू नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका एज वेल. तो यूरोपियंस इस कंट्री की ओर माइग्रेट किए थे. रीज़न ये था कि द लार्ज स्केल माइग्रेशन हुआ क्यों था, बिकॉज द मेन रीज़न वॉज टू कोलोनाइज द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. यानी इन कॉन्टिनेंट्स के जो भी अंडर डेवलप कंट्रीज थी, इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ इट, सो उनको कोलोनाइज करना एंड वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट करना और उनसे इकोनॉमिक बेनिफिट गेन करना, ये प्राइम मोटिव था उनका. बिकॉज दे वर टेक्नोलॉजिकली एडवांस एंड दे वर फ्रॉम डेवलप्ड सोसाइटी. Okay, now moving on to the economic causes. Okay, so one of the prime motives of the immigration seems to be economic. बिल्कुल, इकोनॉमिक फैक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है विच हैज़ द पोटेंशियल टू कॉज माइग्रेशन. मैंस नीड टू हैव वर्जिन आइलैंड टू टिल हैज़ इंस्पायर्ड हिम टू माइग्रेट टू द डिस्टेंट एरियाज. बिल्कुल सही बात है. अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहें तो यही रीज़न था कि द स्लेव्स, जिनको हम अफ्रीकन नेग्रोस कहते हैं, द ब्लैक अफ्रीकन्स, दे वर ट्रांसपोर्टेड टू द प्लांटेशंस इन ट्रॉपिकल अमेरिका. उनको अमेरिका के बाज़ारों में बेचा इसलिए जाता था क्योंकि अमेरिका उस समय एक डेवलपिंग कंट्री था और उससे बहुत ज़्यादा मैन पावर चाहिए था और स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों लेबरर्स चाहिए थे. तो उसके लिए स्लेव्स, अफ्रीका से स्लेव्स लाके, जो कि नेग्रोस जिनको कहा जाता था, उनको अमेरिका में बेचा जाता था और उनसे तमाम काम करवाए जाते थे. यानी कृषि का काम हो या फैक्ट्रीज़ में काम हो, तमाम स्लेव्स का काम उनसे कराया जाता था. और समय के साथ हुआ क्या कि दीज नेग्रोस गॉट सेटल्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. फिर वो धीरे धीरे वहीं सेटल्ड हो गए और वहीं रहने लगे. सो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं इसको. नाउ heavy pressure on the land resources in the motherland has also forced the people to out migrate and to settle in areas. ओके, बिल्कुल सही बात है. हैवी प्रेशर बहुत ज़्यादा था रिसोर्सेज पे, ड्यू टू विच द पीपल वर फोर्स टू सेटल इन द एरियाज वेयर द इकोनॉमिक बेनिफिट्स मे बी अचीव्ड. जहाँ से लोगों को इकोनॉमिक बेनिफिट हो सके, तो लोगों ने वैसे एरिया को छोड़ दिया जहाँ पास लैंड पे, रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था. एंड एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप समझना चाहें तो द pastoral people and the pastoral nomads of the Central Asia, they invaded the territories of the various sedentary people. and जो मंगोल्स थे, तातर्स थे आपके, उज़्बेक्स, याकूत्स एंड कुर्ड्स जो थे, दे माइग्रेटेड टू इन द मेडिवल पीरियड एंड गॉट सेटल्ड इन द फर्टाइल वैली. वो इनफर्टाइल लैंड को छोड़ के, जहाँ पास रिसोर्स अवेलेबिलिटी नहीं थी, एक फर्टाइल लैंड पे माइग्रेट किया और वो वहीं सेटल हो गए. पहले उन्होंने उस टेरिटरीज को कॉन्कर किया, फिर बाद में वहाँ पास सेटल हुए. तो ये एक एग्जांपल इस चीज़ का हुआ. नाउ मूविंग ऑन, द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर जॉब्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट also is the economic reason which compel the youths to leave their home for the places, areas, regions and countries where the employment may be found. Exactly, this is the very very important factor. In fact, आप इसको प्रेजेंट से रिलेट कर सकते हैं. जैसा कि आप देख रहे हैं कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच इज़ प्रेवलिंग, वॉज प्रेवलेंट एंड इज़ प्रेवलिंग इन द सोसाइटी. सो इसकी वजह से होता क्या था, बहुत सारे जो यूथ्स थे, यानी जो जवान लोग थे, दे वर कंपेल्ड टू लीव देयर होम फॉर द प्लेसेस एंड एरियाज वेयर द एम्प्लॉयमेंट मे बी फाउंड.
यानी वो बाध्य थे अपनी उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पर मूव करने के लिए जहाँ पास उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी, बिकॉज आफ्टर ऑल वो सर्वाइवल कंडीशन आ जाती है वहाँ पास। और अगर आप इसको समझना चाहें तो आप आज भी रिलेट कर सकते हैं कि इंडिया में बहुत से ऐसे यूथ हैं जो कि स्किल्ड एज वेल एज अनस्किल्ड दोनों बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में माइग्रेट कर रहे हैं यहाँ से। अगर आप देखना चाहेंगे कि सऊदी अरेबिया का एग्जांपल ले लीजिए, चाइना का ले लीजिए, एंड दे माइग्रेट टू द वेरियस कंट्रीज सच एज चाइना, जापान एंड सऊदी अरेबिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा फॉर द जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बिकॉज यहाँ वो ऐसी कंडीशंस नहीं बन पाती हैं जो जॉब के लिए फेवरेबल हों। तो अगर उनके पास टैलेंट है, जिसे हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं आज के समय में, अगर आप ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे इससे, कि होता क्या है कि उसके कारण हमारी स्किल्ड मैन पावर जो है वो दूसरे कंट्रीज़ में जाके काम कर रही है। उसके पीछे रीज़न यही है कि वहाँ फेवरेबल इन्वायरमेंट उन्हें मिल रहा है, बेटर सैलरी मिल रही है, और एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, वर्क इन्वायरमेंट मिल रहा है। इन तमाम कारणों के कारण यहाँ से माइग्रेशन हो रहा है स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों मैन पावर का। इसके पीछे रीज़न क्या है अगर आप प्रेजेंट पे समय में देखेंगे तो, क्योंकि हमारे यहाँ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में ज़रूर इंडिया ने रैंक लाई अच्छी और वो जंप किया है, बट अभी भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ ऐसी करनी पड़ती हैं, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा हैं, और तमाम ऐसे टैक्सेशन हैं, तमाम ऐसे टैक्सेस हैं जो गवर्नमेंट्स को हमें देने पड़ते हैं। और इंडिया में अगर आप देखें तो हमें गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है इफ़ यू हैव टू स्टार्ट अ बिज़नेस। तो ये सारी चीज़ों की वजह से लोग माइग्रेट कर जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ पास इतना ज़्यादा इनपुट्स नहीं चाहिए होता है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको उसमें पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, लेकिन उसमें आउटपुट आपको अच्छा आएगा, और वो वर्क फेवरेबल इन्वायरमेंट दे रहे हैं वहाँ पास। सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न। और फॉर example, the poverty of agricultural laborers in West Bengal, Odisha and Bihar resulted into the migration waves towards the metropolitan cities। बिल्कुल छोटे शहरों से या गरीब डिस्ट्रिक्ट से ऑफ, जैसा कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार में देखा भी गया है, यूपी बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स में और उड़ीसा वेस्ट बंगाल में, जहाँ पास छोटे छोटे कस्बों से, गाँवों से और शहर से लोग निकल के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हो गई आपकी दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, चेन्नई, ऑल इस जगह जाते हैं, वहाँ पास इंडस्ट्रीज़ में वो काम करते हैं। अनस्किल्ड मैन पावर भी है, स्किल्ड मैन पावर भी है, और कुछ प्लेन्स की तरफ भी माइग्रेट करते हैं जहाँ पास, जो कि एग्रीकल्चरली जहाँ पास बहुत ज़्यादा स्कोप है उसे डेवलप करने का। And the regions and districts of a marginal farmers and small farmers also migrate to the agricultural laborers, as the tiny size of their holdings is unable to provide them adequate sustenance। बिल्कुल सही बात है। जो एक छोटा किसान है, यानी जिसके पास बहुत ही छोटी सी लैंड होल्डिंग है, उसका आउटपुट बहुत ज़्यादा निकल के नहीं आ रहा है, यानी वो सर्वाइवल को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो करेगा क्या, वो ऐसी जगह माइग्रेट कर जाएगा जहाँ पास एक बड़ा लैंड है, और वो उस लैंड पर जाके काम करेगा ताकि वो अपने परिवार के सर्वाइवल को सुनिश्चित कर सके। तो ये भी एक रीज़न है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड कॉज, दैट इज़ एन ओवर पॉपुलेशन। ओके, सो एन एक्सेस ऑफ पॉपुलेशन इन एन एरिया इन रिलेशन to the resources available technology is known as the overpopulation। बिल्कुल, अगर आप आज के समय में से रिलेट करना चाहें तो आज के समय में सबसे ज़्यादा जो माइग्रेशन हो रहे हैं वो ओवर पॉपुलेशन के कारण हो रहे हैं। पास्ट में भी माइग्रेशन इस कारण से हुए थे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि केवल आज ही हो रहे हैं, पहले भी होते थे। और in fact throughout the human history the migration took place because of the overpopulation in a community or a region। अब बात करते हैं ओवर पॉपुलेशन की, तो इट में एग्जिस्ट एट अ लोकल, रीजनल एंड नेशनल लेवल्स। बिल्कुल सही बात है, ये तीनों लेवल पे एग्जिस्ट कर सकता है आफ्टर ऑल। एंड इंडिया, एज वी ऑल नो दैट इंडिया इज़ अ ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। बहुत से रीजन्स हैं, अगर आप फर्टाइल प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें, वो बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड हैं, तो हम उनको कंसिडर कर सकते हैं एज एन ओवर पॉपुलेटेड। और आपके मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ जो हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, आप यहाँ अनुमान लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड हैं। रीज़न ये है कि आपने भी देखा भी है लॉकडाउन में कि कितने माइग्रेंट्स वहाँ से मूव करके अपने होम टाउन के लिए आए, वहाँ पास इमाइग्रेंट्स की संख्या कितनी ज़्यादा है। तो इसका कारण ही क्या है, ओवर पॉपुलेशन है।
At present, it is most frequently seen in underdeveloped rural areas where the outstripping of the resources by the population growth may be evident in undernourishment और underemployment. बिल्कुल सही बात है. अब मैं अगर आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो आप कंसिडर कर सकते हैं कि एट present overpopulation is the most important cause of immigration in the developing countries of Asia, Africa and Latin America. एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें ओवर पॉपुलेशन की वजह से जो माइग्रेशन हो रहा है वो बहुत ही रीसेंट ट्रेंड है. नाउ कमिंग टू द फोर्थ कॉज, दैट इज़ द सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस. सो द ह्यूमन डिज़ायर टू स्टे, वर्क, enjoy life with the people of his ethnic, social and religious group is always an important cause of migration in every period of human history. सोशल फैक्टर्स लीड टू अ लार्ज स्केल माइग्रेशन. बिल्कुल सही बात है. आफ्टर ऑल ये बहुत ही डिटरमाइनिंग फैक्टर है अगर आप जहाँ तक माइग्रेशन कंसर्न है, बिकॉज अगर हम अपने को ही कंसिडर करें तो हम हमेशा पसंद करेंगे अपने कल्चर के साथ अपने कल्चर के लोगों के साथ रहने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी कम्युनिटी को देखें तो बेसिकली वो अपने ही कम्युनिटी के ग्रुप के लोगों के साथ रहना चाह रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई एम हिंदी स्पीकिंग पीपल, इफ़ आई एम हिंदी, माई नेटिव लैंग्वेज इज़ हिंदी, देन आई विल प्रेफर टू लिव विद अ पर्सन ऑफ हु स्पीक्स हिंदी, बिकॉज उससे मैं प्रॉपर रिलेट कर पाऊँगा और एक बॉन्डिंग बन पाएगी. तो यही ह्यूमन नेचर भी रहा है. एंड अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो द मुस्लिम्स आर मूविंग आउट फ्रॉम द म्यांमार, बर्मा टू बांग्लादेश. The feeling of insecurity is compelling many of the Kashmiri Pandits. Exactly, this is one of the biggest example जिससे आप रिलेट कर पाएंगे. कश्मीरी पंडितों का पलायन क्यों हुआ? रीज़न ये था कि वहाँ पे उनका कल्चर लोगों से मैच नहीं खाया, वहाँ पास किसी और कल्चर का डोमिनेंस था, कोई और रिलीजन वहाँ पास डोमिनेट कर रहा था, तो वहाँ से उनका फोर्स माइग्रेशन हुआ. Okay, so the feeling of insecurity is compelling many of the Kashmiri Pandits and Punjabi Hindus to out-migrate from Jammu and Kashmir and Punjab respectively, while the Muslim prefer to migrate from the Hindu-dominated areas to Muslim localities and vice versa, irrespective of the social amenities. आप better relate कर पा रहे होंगे अब इसे. Now, moving to the fifth cause and final cause, that is the political causes. Okay, आफ्टर ऑल हमें इसे कंसिडर करना पड़ेगा बिकॉज ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही डिटरमाइनिंग फैक्टर है इन टर्म्स ऑफ माइग्रेशन. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉजेज ऑफ माइग्रेशन स्पेशली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज़ द पॉलिटिकल वन. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ऐसा सिनेरियो रहा है कि जो माइग्रेशन का ट्रेंड था वो पॉलिटिकल ओरिएंटेड हो रहा है बहुत ज़्यादा. एंड पॉलिटिकल रेफ्यूजी इज़ अ वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन टुडे. बिल्कुल सही बात है. आप कहीं दूर मत जाइए, इंडिया का एग्जाम्पल लीजिए. इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है असम. असम में क्या प्रॉब्लम आई थी कि वहाँ पास इलीगल माइग्रेंट्स बहुत ज़्यादा आ गए थे, या जिन्हें आप रिफ्यूजी कह सकते हैं. और ये आए कहाँ से थे? ये 1971 के आसपास जब हमने वॉर लड़ी थी पाकिस्तान से, और जब बांग्लादेश का विभाजन हो रहा था, तो जो पूर्वी पाकिस्तान था यानी बांग्ला भाषी पाकिस्तान और हमारा जो नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान था यानी उर्दू भाषी पाकिस्तान, तो इनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट था. हुआ क्या कि उसी कॉन्फ्लिक्ट के कारण आपस में जब इनकी लड़ाई हुई तो बहुत सारे वहाँ के लोकल लोग निकल के इंडिया में आ गए और इंडिया ने उस समय इनको शरण दी. और आज हुआ क्या कि ये ना वहाँ की सिटीजनशिप इनको मिल पाई ना यहाँ की मिल पाई. इस वजह से दे आर लिविंग एज अ पॉलिटिकल रिफ्यूजी ओवर हेयर, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट को बाध्य होकर वहाँ पास नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटीजन करवाना पड़ा. ओके, सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कॉजेज़ क्लियर हो गए होंगे माइग्रेशन के अब तक. ओके गाइस, सो रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल सी इन द सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो, बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. एंड इन द सेकेंड पार्ट वी विल बी डीलिंग विथ द टाइप्स ऑफ माइग्रेशन एंड consequences of migration. So guys, I'll catch you soon. Till then, stay tuned with us. Our team is working very hard for your convenience, and thanks for watching and keep sharing. Thank you so much.